Narendra Bhai got him out of jail because of the setting of judges. वो बाबू बजरंगी सीधा बोलता है कि मुझे जेल से छुड़वाया ऐसे जज का सेटिंग करके। तो आजकल कुछ लेखकों को बोलना ऐसे स्पॉन्टेनियसली बोलना खतरा है। हर कौमा और हर शब्द में पुलिस केस बन जाता है। तो इसीलिए मैंने कुछ लिखा है और उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी है और दोनों शायद कहीं छप जाएगा, लेकिन क्योंकि मैंने अंग्रेज़ी में लिखा है मैं अंग्रेज़ी में पढ़ूंगी और बीच बीच में 1002 जो बाबू बजरंगी है, जो उनको अक्यूज नहीं है, वो कन्विक्टेड है, 96 किलिंग्स में कन्विक्टेड है, लेकिन YouTube का वीडियो है, इसका लिंक मैं जब ये पब्लिश होगा उसका लिंक आप देख सकते हैं और उसमें बाबू बजरंगी विल टेल यू हाउ नरेंद्र भाई गॉट हिम आउट ऑफ जेल बिकॉज ऑफ द सेटिंग ऑफ जजेस। वो बाबू बजरंगी सीधा बोलता है कि मुझे जेल से छुड़वाया ऐसे जज का सेटिंग करके। तो 1947 में जो आज़ादी पाया अंग्रेज़ों से, उसके लिए सबने लड़ा, सिर्फ जो आज हमको राज करे वो नहीं लड़ा, बाकी सब ने लड़ा। Since then, all manner of social movements, anti-caste struggles, anti-capitalist struggles, feminist struggles have marked our journey up to now. मतलब तब से अब तक anti-caste struggles थे, feminist struggles थे, ज़मीन के बारे में struggle थे, capitalism पूंजी के खिलाफ struggles थे। 1960s, there was the call to revolution was a demand for justice, the redistribution of wealth and the overthrow of the ruling class. लेकिन 1990s में हमारा रेवोल्यूशन छोटा हो गया। तब 90s में हम डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ लड़ने लगे। जो बचा है ज़मीन आदिवासी के पास, दलित के पास, गांव वालों के पास, वो मत छीनो। इसको हम रेवोल्यूशन कहने लगे कि वो मत छीन के कॉर्पोरेट के हाथ में डाल दो। And so we were fighting against the displacement of millions of people from their own lands and villages, people who became the collateral damage for building the new India in which 63 of India's richest people have more wealth than the annual budget outlay of 1,200 million people. तो ये वाला इंडिया के लिए गरीबों से सब कुछ छीन लिया। Now we are reduced to pleading for our rights as citizens from people who had nothing to do with building this country. तो अब हम और भी नीचे गिर गए कि हम अपना नागरिकता के लिए भीख मांगना पड़ रहा है। किससे? उनसे जिन्होंने कुछ नहीं किया इस देश को बनाने में, सिर्फ बिगाड़ने में काम किया। अब उनसे हमें भीख मांगना पड़ रहा है कि हमारा नागरिकता मत छीनो। And as we plead, we watch the state withdraw its protection, we watch the police get communalized, we watch the judiciary gradually abdicate its duty, we watch the media that is meant to afflict the comfortable and comfort the afflicted do the very opposite. Today is the 210th day since Jammu and Kashmir was unconstitutionally stripped of its special status. Thousands of Kashmiris, including 3 former chief ministers, continue to be in jail. 7 million people are living under a virtual information siege, a novel exercise in the mass violation of human rights. On February 26th, the streets of Delhi looked like the streets of Srinagar. That was the day that Kashmiri children went to school for the first time in 7 months. But what does it mean to go to school while everything around you is slowly throttled? A democracy that is not governed by a constitution and one whose institutions have all been hollowed out can only ever become a majoritarian state. You can agree or disagree with the constitution as a whole or in part, but to act as though it does not exist, as this government is doing, is to completely dismantle democracy.
मतलब बिना कॉन्स्टिट्यूशन का डेमोक्रेसी नहीं होता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन से आर्ग्यू कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, इस क्लॉज से उस क्लॉज से या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से आप आर्ग्यू कर सकते हैं, पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, जो मर्जी करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। वो पूरा डेमोक्रेसी को ख़त्म करने वाली बात है। लेकिन शायद यही है उनका मकसद। दिस इज़ द एम, दिस इज़ आवर वर्जन ऑफ द कोरोना वायरस। हमारा हिंदुस्तानी कोरोना वायरस यही है। वी आर सिक, हम बहुत बीमार हैं। देयर इज़ नो हेल्प ऑन द होराइजन, नो वेल मीनिंग फॉरेन कंट्री, नो UN। मदद करने वाले कोई नहीं है, कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई UN नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। And no political party that intends to win elections will or can afford to take a moral position. और जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उनको इलेक्शन जीतना है, हमने देख चुके, आज देखा है, जो पार्टी बहुत बड़ा पैमाने में इलेक्शन जीता है, वो भी कोई मॉरल पोजीशन नहीं ले सकते। तो पॉलिटिकल पार्टी हमें बचाने नहीं आएंगे, बिकॉज देयर इज़ फायर इन द डक्ट्स, द सिस्टम इज़ फेलिंग। मतलब AC का डक्ट्स जो होते बिल्डिंग में, उसी में आग लगे हैं, मतलब स्ट्रक्चरली आग लगे हैं, पूरा सिस्टम ध्वस्त हो रहा है। What we need are people who are prepared to be unpopular, who are prepared to put themselves in danger, who are prepared to tell the truth। कि हमें उन लोगों का ज़रूरत है जो पॉपुलर नहीं होना चाहते, जो बहुत सारे लाइक्स नहीं पाना चाहते हैं, जो वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जो अपने आप को खतरा में डालने के लिए तैयार है और जो सच बोलने के लिए तैयार है। Brave journalists can do that and they have। मतलब बेबाक जर्नलिस्ट कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। Brave lawyers can do that and they have। बेबाक लॉयर वकील कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। And artists, beautiful, brave, brilliant writers, poets, musicians, painters and filmmakers can do that। मतलब जो आर्टिस्ट लोग हैं, राइटर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, जो वोट नहीं मांग रहे हैं, हम लोग कर सकते हैं। और वो सारा का सारा वो खूबसूरती हमारे साइड में है, उनके साइड में नहीं है। खूबसूरती सब हमारे साइड में है, पूरा का पूरा। We have work to do and a world to win। हमारे आगे बहुत काम है और एक पूरा दुनिया रहा है जीतने के लिए। थैंक यू।